اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج دن بھر کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہے۔ سب سے پہلی خبر کا تعلق پاکستان سے ہے کہ سال 2010 سے 2019 کے دوران پاکستان میں ذیابیطس یعنی ڈائبٹک کے مریضوں کی تعداد میں تقریباً 30 لاکھ افراد کا اضافہ ہو گیا ہے۔ صوبوں میں خیبر پختونخوا سب سے زیادہ متاثر ہے۔ ماہرین صحت نے جسمانی سرگرمیوں کی کمی یعنی ورزش، تمباکو کے استعمال میں اضافہ اور ناموافق غذا کو بڑی وجہ قرار دیا ہے۔ 2010 میں پاکستان میں ذیابیطس یعنی ڈائبٹیز کے مریضوں کی تعداد 59,86,219 تھی، جو 2015 میں تقریباً 20% اضافے سے 74,82,723 ہو گئی تھی۔ مصر میں ایک مسجد کے اندر رقص و سرور اور گانے کی محفل منعقد کیے جانے کے شرمناک واقعے کے بعد سوشل میڈیا اور عوامی حلقوں پر اس کے خلاف سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ عوامی حلقوں نے مسجد میں متنازع پارٹی منعقد کرانے کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر سرگرم کارکنوں نے ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر قاہرہ کی سلطان ابو العلا مسجد کے اندر ایک پارٹی کی ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے۔ اس ویڈیو میں دف کے ساتھ موسیقی کا کنسرٹ اور لوگوں کو محو رقص دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں گانے گائے گئے اور حاضرین نے گلوکاروں کی موسیقی جھوم جھوم کر سنی۔ لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے آواز بلند کرنے والی نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی سیلاب متاثرین سے ملاقات کے لیے کراچی پہنچ گئیں۔ ملالہ یوسفزئی اپنے دورے کے دوران حکومتی عہدیداروں کے ہمراہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گی اور وہاں پر متاثر ہونے والے شہریوں سے ملاقاتیں کریں گی۔ ملالہ یوسفزئی دنیا کی سب سے کم عمر نوبل انعام یافتہ شخصیت ہیں، جنہیں 17 سال کی عمر میں نوبل پرائز دیا گیا تھا۔ سنگاپور ایئر لائن نے حاملہ خواتین کی ملازمت ختم کرنے والا امتیازی قانون تبدیل کر دیا ہے۔ کیبن کرو میں شامل حاملہ خواتین سے متعلق قوانین میں ترمیم کر دی گئی ہے۔ طویل عرصے سے اس قانون کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ پہلے قانون کے تحت کیبن کرو میں شامل خواتین کو حاملہ ہونے کی صورت میں ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑتے تھے۔ عالمی شہرت یافتہ کولمبین گلوکارہ شکیرا نے بھی ایرانی خواتین کے ساتھ اظہار یکجہتی کر دیا ہے۔ حال ہی میں شکیرا نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر 22 سالہ مہسا امینی کو شدید تشدد کا نشانہ بنائے جانے کے واقعے کے بعد ایران میں جاری مظاہروں سے ایک تصویر شیئر کی ہے۔ انہوں نے یہ تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میں مہسا امینی کے خاندان، ایران کی خواتین اور اسکول کی طالبات اور تمام لوگوں کے ساتھ ہوں جو آزادی رائے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشن نے بتایا ہے کہ 24 فروری سے جاری روسی حملوں کے بعد یوکرانی آبادی کا 1/3 ملک سے ہجرت کر چکا ہے، جس میں کثیر تعداد میں خواتین، بچے، بوڑھے اور معذور شامل ہیں، اور یوکرانی مہاجرین انتہائی غیر محفوظ شکل میں رہ رہے ہیں۔ یوکرائن پر روس کی جانب سے کیے گئے میزائل حملوں میں ملک میں مقیم ہزاروں کنبے بجلی اور رسل و رسائل سے محروم ہیں۔ قطر میں ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ 2022 کی سیکورٹی کے انتظامات سنبھالنے کے لیے پاک فوج کا دستہ نور خان ایئر بیس سے دوحہ روانہ ہو گیا۔ ریڈیو پاکستان کی رپورٹ کے مطابق قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کی سیکورٹی سنبھالنے کے لیے روانہ ہونے والے پاک فوج کے دستے میں افسران، جونیئر کمیشنڈ آفیسران اور جوان شامل ہیں۔ پاک فوج فیفا ورلڈ کپ 2022 کے دوران قطر کی حکومت کے لیے سیکورٹی میں معاونت کرے گی۔ قطری حکومت نے پاکستان سے فیفا ورلڈ کپ 2022 کے دوران سیکورٹی میں معاونت کی درخواست کی تھی۔ سال 2022 اگست کے آخر تک دبئی میں ہوٹلوں کے کمروں کی تعداد 1,42,200 تک پہنچ گئی ہے۔ اگست 2021 میں ان کی تعداد 1,29,300 تھی، جبکہ دبئی میں 2021 کے اگست میں اس سال اگست تک 62 نئے ہوٹل کھولے گئے ہیں۔ دبئی کے محکمہ سیاحت کا کہنا ہے کہ ایک برس کے دوران دبئی میں 12,000 سے زائد نئے ہوٹل کے کمروں کا اضافہ ہوا ہے۔ سال رواں کے ابتدائی 8 ماہ کے دوران 91 لاکھ غیر ملکی سیاح دبئی آئے تھے۔ 2021 کے ابتدائی 8 ماہ کے دوران 32 لاکھ سیاح آئے تھے۔ اگست کے دوران 10 لاکھ سیاح دبئی آئے۔ جنوری اور اگست کے دوران جتنے سیاح آئے ان کی تعداد کرونا وبا سے قبل اس مدت کے دوران آنے والے سیاحوں کے برابر ہے۔ عالمی وبا کرونا وائرس کی پابندیوں میں نرمی کے بعد حکومت جاپان نے ٹورسٹ ویزوں پر پابندی ختم کر دی ہے۔ پابندی اٹھنے کے بعد اب ٹورزم، کاروبار اور فیملی سمیت تمام ویزے جاری ہو سکیں گے۔ جاپانی وزارت خارجہ کے مطابق اب جاپان آمد کی یومیہ حد 50,000 کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ بارسلونا میں پہلی بار بوفے 22 سے زائد آئٹم کے ساتھ
पाकिस्तानी और इंडियन खानों का भरपूर स्वाद हबीब विलेज रेस्टोरेंट। फैमिलीज के लिए पुरसकून माहौल, कुशादा हाल, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए आइडियल मुकाम। अल्कोहल से पाक और हलाल पकवान हमारी पहचान। शीशा और पूल टेबल के शौकीन के लिए आइडियल जगह। खूबसूरत तरासा बार्सिलोना के साहिल के करीब सेंट्रो कमर्शियल लाबिया में वाक़े हमारा पता ये है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद यूरोप में गैस की कमी का खौफ पैदा हो गया है और यूरोप में इलेक्ट्रिक हीटर्स की फरोख्त बढ़ गई है। जर्मन अवाम धड़ाधड़ इलेक्ट्रिक हीटर्स खरीद रहे हैं। वजह यह खदशात है कि आने वाले मौसम सरमा में जर्मनी को कुदरती गैस की शदीद कमी का सामना करना पड़ सकता है। लोगों को खदशा है कि घरों को गर्म रखने के लिए गैस दस्तयाब ही नहीं होगी। साल 2022 के आगाज से अब तक जर्मनी में 9,58,000 इलेक्ट्रिक हीटर फरोख्त हो चुके हैं। जनवरी से अगस्त 2022 के दौरान जर्मनी में इलेक्ट्रिक हीटर्स की फरोख्त में गुज़िश्ता बरस की इसी मुद्दत के मुकाबले में 76% इजाफा हुआ है। यूरोपीय कमीशन ने गुज़िश्ता रोज एक नया ऑनलाइन टूल मुतारिफ करवाया है ताकि यूक्रेनी अवाम को मुलाजमत की तलाश करने में आसानी हो। हालिया जंग के दौरान यूक्रेन से जान बचाकर आने वाले 42 लाख बाशिंदे यूरोपीय ममालिक में पहुंचे हैं, जिनको रिहाइश की सहूलत, सेहत की देखभाल और तालीमी सहूलियात फराम की जा रही हैं। ऑनलाइन जॉब सर्च टूल में 4000 से ज़ायद एम्प्लॉयर्स, कौमी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज और प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसियों से राब्ते मुमकिन हो सकेंगे। हर 5वें जर्मन की सालाना आमदनी 16,300 यूरो से कम है। किसी भी दूसरे मुल्क की तरह जर्मनी भी यूरोपीय यूनियन का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है और दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी में शुमार होता है। मुख्तलिफ समाजी तबकात की औसतन सालाना आमदनी में बहुत वसी खलीज पाई जाती है। बहुत से शहरी तो इतने अमीर हैं कि उन्हें हर साल सैकड़ों मिलियन से लेकर अरबों यूरो तक की आमदनी होती है। इसके बरक्स लाखों बाशिंदे ऐसे हैं जिनमें जर्मन शहरी और जर्मनी में मुस्तकिल तौर पर रहने वाले गैर मुल्की भी शामिल हैं। इसके बरक्स लाखों बाशिंदे जिनमें जर्मन शहरी और जर्मनी में मुस्तकिल तौर पर रहने वाले गैर मुल्की भी शामिल हैं, इतने कम वसाइल के हामिल होते हैं कि उन्हें जिंदगी गुसर बसर करने के लिए इमदाद पर इन्हिसार करना पड़ता है। बरतानवी अथॉरिटीज के मुताबिक इंग्लिश चैनल को 25 छोटी कश्तियों पर सवार 1065 इमिग्रेंट्स ने अबूर किया। दीगर 367 को आबनाए पास डी कैलिस से रेस्क्यू किया, उन्हें फ्रांस वापस लाया गया। यहाँ यह अमल काबिल जिक्र है कि बढ़ते हुए खराब मौसमी हालात के बावजूद बड़ी तादाद में तारकीन वतन छोटी कश्तियों में इंग्लिश चैनल अबूर करने का खतरा मोल ले रहे हैं। इंग्लिश चैनल दुनिया के मसरूफ तरीन समुद्री रास्तों में से एक है, जहाँ हर रोज 400 से ज़ायद जहाज गुजरते हैं। साल के आगाज से अब तक रिकॉर्ड 33,500 अफराद ने इनलीगली तौर पर चैनल को अबूर किया है। 2021 में कुल तादाद तकरीबन 28,520 थी। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया। पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता का ये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। पोप फ्रांसिस ने इमिग्रेंट्स के साथ यूरोप के इम्तियाजी सलूक को गुनाह करार दे दिया। पोप फ्रांसिस ने बहरा रूम को अबूर करने के लिए अपनी जानों को खतरे में डालने वाले इमिग्रेंट्स के बारे में यूरोप की बेहसी की मजम्मत करते हुए कहा है कि इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करना काबिल मजम्मत, मकरूह और गुनाह है। इन ख्यालात का इजहार पोप ने सेंट पीटर्स स्क्वायर में एक अंदाजे के मुताबिक 50,000 अफराद के इज्तिमा से खिताब करते हुए किया। पाकिस्तानी वजारत खारजा की जानिब से बताया गया है कि चीन की जेलों में 236 पाकिस्तानी कैद हैं, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं। पाक चीन माहिदा 2020 के तहत 21 कैदियों की रिहाई की दरख्वास्त की गई है। 81 पाकिस्तानी कैदी 3 साल चीन में अपनी सजाएं मुकम्मल करने के बाद रिहा हो चुके हैं। पाकिस्तानी कैदियों की जल्द अज जल्द हवालगी के लिए पाकिस्तानी मिशन चीनी हुक्काम से राब्ते में है। स्पेन में तमाम यूरोपियन शहरियों को गाड़ी चलाने की ज़रूरत है। इसके लिए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और वो 1 साल तक अपना ड्राइविंग लाइसेंस स्पेन में इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि गैर यूरोपीय यूनियन शहरियों के लिए ज़रूरी है कि उनके पास IDP यानी इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट हो तो वो स्पेन में गाड़ी चला सकते हैं। स्पेन में गाड़ी चलाने की कानूनी उम्र 18 साल है और स्पेन में ड्राइविंग लेफ्ट हैंड है। स्पेन की सड़कों पर तकरीबन 38,000 राउंड अबाउट्स यानी गोल चक्कर हैं। स्पेन के कानून के मुताबिक मुल्क में कार किराए पर लेने के लिए एक फर्द की उम्र कम से
कम 21 साल होनी चाहिए, जबकि बाज रेंट ए कार कंपनियों में 23 साल की उम्र की पाबंदी है। 25 साल से कम उम्र का कोई भी ड्राइवर 20 यूरो के करीब अजाफी यंग ड्राइवर सरचार्ज अदा करेगा। इसमें कार का किराया पर डे तकरीबन 29 यूरो या 210 यूरो पर वीक हो सकता है। क्राइम की रोकथाम की एक एजेंसी का कहना है कि महाजरीन को स्पेन के रास्ते बर्तानिया ले जाने वाले अल्बानी स्मगलर्स के गिरोह का खात्मा कर दिया गया है। यह गिरोह इमिग्रेंट से स्पेन से बर्तानिया ले जाने के लिए 3,000 से 15,000 पाउंड वसूल करता था। इस ज़मन में स्पेन और यूके की क्राइम एजेंसियों और स्पेन के ग्वार्डिया सिविल ने ऑपरेशन किया और 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 निज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। स्पेन के कानून नाफिज करने वाले इदारों नेशो पुलिस और यूरोपोल के एहलकारों ने 11 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिन पर मालिया में नौजवानों को इस्लामिक स्टेट यानी दाइश के लिए भर्ती करने का इल्ज़ाम है, यानी जिहादी नेटवर्क चलाने का इल्ज़ाम है। इस नेटवर्क के स्पेन और मराकश में गिरफ्तार अफराद ने इंटरनेट के जरिए और ज़ाती तौर पर दाइश के लिए नौजवानों से रब्ता किया और उन्हें भर्ती होने की तरगीब दी। ये गिरफ्तारियां नादौर, गरनाता और मलिया के शहरों से अमल में आई हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश वही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा जरिया होता है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात और ज़ियारत नसीब फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुश्किलात में फंसे हुए लोगों की मुश्किलात को दूर करे। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।